Juhar, welcome to Learn Logically. Be a rational human. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to Curiously Chemistry program, the Cations in Education. As you all know that last day the NEET examination has been successfully conducted all across the nation. As the questions are very easy, I think all of you did the examination very great. So today in this video we are going to discuss the chemistry question and explain all its solution. So without being late, let's begin. So here is the first question. Sucrose on hydrolysis gives what? This is a very straightforward question from the NCERT biomolecules chapter. As you can clearly see that this is the snapshot of your NCERT book. Sucrose is combination of alpha D glucose and beta D fructose. So on hydrolysis of sucrose, it will give alpha D glucose and beta D fructose. Come to the next question. Elimination reaction of 2-bromopentane. Let me draw the 2-bromopentane. Okay, this is the 2-bromopentane. It will give pent 2-ene. Okay, so it is the pent 2-ene. Let me number so that you can clearly understand. Okay, so what will be the correct option? Okay, so beta elimination follows Z-shape rule, dehydrohalogenation reaction, dehydration reaction. ठीक है, तो अभी हम इसका मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो ये जो बीटा पोजीशन ये जो है, ठीक है, इसके जो दोनों बीटा पोजीशन है, एक तो हो गया ये बीटा पोजीशन, एक तो हो गया ये बीटा पोजीशन 1 एंड 3, और ये दो जो है ये अल्फा पोजीशन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये थर्ड पोजीशन, जो मतलब ये जो बीटा पोजीशन से यहाँ से होके इधर जा रहा है, तभी ये Br माइनस होके निकल रहा है, आउट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो इट इज मस्ट ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट फॉलोज द Z-shape rule because this carbon contains the least number of hydrogen, but this carbon is contain more number of hydrogen. How can I say that? Because in this carbon there is 3 number of hydrogen, while here 2 number of hydrogen. If the hydrogen released from the lesser number of if the hydrogen is removed from the lesser number of hydrogen containing carbon, then it follows the Z-shape rule, and here also happening the same. That's why it follows the Z-shape rule. Next come to the dehydrohalogenation reaction. Yes, in the product part there is no halogen as well as no hydrogen, as this hydrogen and Br are eliminating, so the product will be this. So yes, it is obeying the dehydrohalogenation reaction product. Dehydration, no, there is no hydration or no dehydration, so the options are correct will be A, B, C. So the fourth option will be correct. Okay, next come to the next question. The number of Faradays required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2. In CaCl2, calcium is in 2 plus state. So this will be the equation for it. As it is 2 electron, so it required 2 Faraday. 2 Faraday is required for 40 gram. Okay, 40 gram. So how many farad will be required for 20 gram? Simple mathematics. So the answer will be 1. Okay. The next question is, an element has a body centered cubic BCC structure with a cell H 288 picometer. The atomic radius will be. This is also a very direct question, as from your NCERT. Wait a second, let me erase all these things. As you can clearly see that the relationship between the radius and the edge or the side of a cube is r is equal to root 3 upon 4a. So the here a is equal to 288 picometer. So option D will be, or sorry, option 4 will be correct. Let's move forward. HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compounds crystallizes? So the options are only NaCl, only MgCl2, NaCl, MgCl2 and CaCl2, both MgCl2 and CaCl2. Actually this is a very tricky question. The option after seeing the option, it may be only NaCl or it may be NaCl, MgCl2 and CaCl2, because
Actually, when we are passing HCl through the solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl, actually each of the compound get crystallizes, but the rate of crystallization of NaCl compound will be much faster because the reactivity of sodium is greater than that of magnesium, is greater than that of calcium. Even if there was a option is KCl, then potassium's rate will be even more faster because the reactivity of potassium is highest than that of sodium, than that of magnesium and than that of calcium. So the most probably I think it will be only NaCl. If not, then it may be this third option. So this is a confusing question. Let the answer come out from the official website, but still I go for the only NaCl option. Okay, then next come to find out the solubility of NiOH whole 2 in 0.1 m NaOH, given that the ionic product of NiOH whole 2 is 2 into 10 to the power minus 15. This is a very simple question, straightforward. Let me write the equation for you. So NiOH whole 2 get dissociates into Ni2 plus then 2OH माइनस. ठीक है. सो अभी अगर हम इसका सोलेबिलिटी प्रोडक्ट का लिखेंगे तो ये S हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2S. मतलब अगर मैं इसको KSP के जो इक्वेशन है अगर मैं इसमें लिखूंगा तो S इंटू S to the power 2. Since the OH minus concentration is low of this NiOH whole 2, then there is an extra OH ion of NaOH, that means the 0.1 m NaOH, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे कि हम यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का पकाएंगे फॉर्मूला. सो KSP हमको गिवन है कितना है 2 into 10 to the power minus 15 और ये हो गया S जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है और मैं इस S में जहाँ के मतलब ये OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 m का पुट कर रहा हूँ स्क्वायर. सो द S विल बी 2 into 10 to the power minus 13. सो द आंसर विल बी 2. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. For the reaction 2Cl2 form Cl2, the correct option is, देखो यहाँ पे Cl2 गैस फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन. ठीक है, कहीं पे भी अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा. ठीक है, एंड अगेन सो दिस ए ऑप्शन एंड 4 ऑप्शन विल बी कैंसल आउट बिकॉज यहाँ पे तो डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है तो ये 2 और 3 में होगा. अभी देखते हैं डेल्टा एस में, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर है 1, यहाँ पे है 2 मोल, तो 1 minus 2 is equal to -1, दैट मीन्स इट इज ए नेगेटिव. सो द डेल्टा एस विल बी नेगेटिव. सो द आंसर विल बी 3. 97 का 3 होगा, दोनों ही नेगेटिव होगा. ठीक है, नेक्स्ट कम टू 98 नंबर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये तो पूरा रट्टा हुआ चीज है. अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है, अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अच्छे से लगाई है रट्टा, देन दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट. ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है. ठीक है, तो मैं अगर इसको कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ा आपको टेक्निकली भी बताऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो Cn माइनस लिगांड है, C2 मतलब ऑक्सालेट आयन है, यहाँ पे फ्लोराइड आयन है, यहाँ पे थायोसाइनाइड आयन है. तो जिन लोगों का अगर ये जो लिगांड का जो स्ट्रेंथ होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज अपॉन द साइज होता है. सो उस हिसाब से भी अगर आपको ये सीरीज अगर याद नहीं भी है, मैं तो ये जो सीरीज होते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इन लोगों का तो मैंने एक डिफरेंट ट्रिक बना के रखा है जो कि मैं आप लोगों को मेरे जो पूरा एकेडमिक लेक्चर का सीरीज आएगा वहां पे मैं बताऊंगा जब हम लोग ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए मैं आपको ये एनसीईआरटी का रेफरेंस दिखा के या फिर ये लिगांड स्ट्रेंथ के ऊपर मतलब चार्ज अपॉन साइज के हिसाब से ये 4 ऑप्शन करेक्ट है बोल के आपको छोड़ रहा हूँ. बट अगर आपको इसका पूरा वो ट्रिक जानना है तो आपको मेरे साथ इस सफर में जुड़ा रहना पड़ेगा. अभी हम आगे बढ़. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलकुलेटेड स्पिन ऑफ ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन. तो सबसे पहले अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए. तो सबसे पहले क्रोमियम का कितना होता है, आर्गन 18, 3d5, 4s1.
यहाँ पे क्या दिया गया है Cr2+, तो अगर मैं आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मतलब 4s से एक निकल गया, 3d5 से एक निकल गया, तो कितना बचा, आर्गन 18, 3d4। ठीक है, सो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस टू रूट ओवर ऑफ बोर्स मैग्नेटन, अगर आप यहाँ n के जगह 4 पुट करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। बट अगर आप इतना इक्वेशन सॉल्व करने लगे एग्जाम में तो टाइम तो चला जाएगा जल्दी से। सो द ट्रिक इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होता है, इसका जो मतलब डेसिमल के लेफ्ट में होता है उस नंबर के साथ ये इक्वल होता है। तो ये देखो ऑप्शन 1 में ये करेक्ट है, 4 and 4 equal, so the answer will be 4.90 Bohr's magneton। ठीक है, next come to which of the following set of molecules will have zero dipole moment। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको तीन चीज का जानना बहुत जरूरत है। सबसे पहली बात है आपको स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका मतलब प्रॉपर बॉन्ड एंगल पता होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमको दिया गया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। Let me draw its structure BF, then hydrogen fluoride, then carbon dioxide, then 1,3-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene। ठीक है, उसके बाद हमारा और क्या क्या दिया है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, और क्या दिया है, वाटर दिया है, वाटर, और क्या दिया है, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कोई दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी स्ट्रक्चर दिए होंगे उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके जो डाइपोल मोमेंट उसको हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। मुझे थोड़ा कलर चेंज कर देने दीजिए, अच्छा लगेगा नहीं, तो अभी हम ब्लू कलर में करेंगे। तो BF3 का, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं इन दोनों का, तो ये इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन ये भी जो निकलेगा ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो डायपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का डायपोल मोमेंट जीरो है। ये कौन कौन से ऑप्शन में है पहले हम देख लेते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 3 में है। तो हमारा जो आंसर आएगा या फिर ऑप्शन 1 आएगा या फिर ऑप्शन 3 आएगा। हम बस एक ही मॉलिक्यूल को हम टेस्ट करके हम पहचान गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये देखो यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट है तो फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। सो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, आंसर विल बी ऑप्शन 3। लेट मी क्रॉस चेक। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का तो हमने कर लिया। उसके बाद बेरिलियम डाइफ्लोराइड का है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ये देखिए ये फ्लोरीन इस तरफ, ये फ्लोरीन इस तरफ, लेफ्ट राइट कैंसिल, डाइपोल मोमेंट जीरो। देन कार्बन डाइऑक्साइड, हियर आल्सो ऑक्सीजन सेम, लेफ्ट राइट कैंसिल, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगेन 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी अपवर्ड पूरा पारा पोजिशन से लेके कैंसिल होकर डाइपोल मोमेंट जीरो। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, देन 101, the following metal ion activates many enzyme participate in the oxidation of glucose to produce ATP with sodium is responsible for the transmission of nerve signals। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं भी पता, अगर आप बायोलॉजी थोड़े से पढ़ के आए हैं तो ये पोटेशियम ही होगा, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो हमारा बायोलॉजी में होता है ये ही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी जितने भी नर्व के रिलेटेड इशू होते हैं। ये तो एक जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं एन अल्केन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथानॉल एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। पहले ओजोनोलाइसिस का जो फंडा है हमारे एनसीईआरटी में वो देख लेते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब है अगर हम इस जो डबल बॉन्ड है इसको अगर हाइड्रोलिसिस मतलब ओजोनोलाइसिस करते हैं तो फिर यहाँ पे हमको एक कीटो कार्बोनिल ग्रुप का इंसर्शन होता है, इधर एक कार्बोनिल ग्रुप का इंसर्शन होता है। तो अगर हम प्रोपेन में अगर इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप का इंसर्शन करते हैं तो हम एक इथानॉल पाते हैं और एक मिथानॉल पाते हैं।
तो इधर हमको भी क्वेश्चन में बोला गया है मिथानॉल बोलने के लिए, तो मिथानॉल का मतलब क्या हो गया, HCHO। तो कहाँ पे अगर हम करेंगे ओजोनोलाइसिस तो हमको ये मिथानॉल मिलेगा, ये देखिए सेकंड ऑप्शन HCHO यहाँ पे मिलेगा। तो द टू ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अभी हम देखते हैं 103। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 to the power 3 second inverse. The time required to reduce 2.0 gram of the reactant to 0.2 gram is dash। तो ये भी पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को पता है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का वैल्यू हमको दिया गया है 4.606 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए दिया गया है 2 एंड ए माइनस एक्स मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.2 दिया गया है। इसको कैलकुलेट कैसे इजी तरीके से करते हैं, देखो ये हो गया 10, तो लॉग 10 का वैल्यू हो गया 1, तो ये जो फैक्टर हो गया ये इतना फैक्टर का वैल्यू क्या होगा इंटू 1 हो गया। अब ये देखो 2.303 नीचे है 4.606, तो 2 निकल गया। तो 1/2, ये जो नीचे है 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 3। सो इंटू 1 इज इक्वल टू 1000 divided by 2 is equal to 500. So the answer will be 500 second. Okay, that means the two option will be correct. Next come to reaction between acetone and methyl magnesium chloride. This is an application of Grignard reagent. Okay, let me draw the structure. acetone मतलब CH3CO CH3 और उसको हमको रिएक्शन करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो हमको सबसे ये तो इजीएस्ट है, क्योंकि अगर हमको वो प्लस माइनस चार्ज निकालना आ गया देन इट विल बी वेरी इजी। जैसे कि हमको पता है कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो मिथाइल पार्ट होता है ये नेगेटिव होता है और ये MgCl पार्ट वो पॉजिटिव होता है। so this will be attacked to here and it will be goes here। तो CH3 ये आ गया और एक CH3 और ये हो गया O माइनस प्लस MgCl प्लस है। अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे देन ये हो जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा MgOHCl। सो आंसर विल बी ये क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो टू ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is a natural polymer? which of the following is a natural polymer? ये तो पूरा डायरेक्ट है एनसीईआरटी का, ये देखिए रुकिए थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। ये देखो एनसीईआरटी का 433 पेज पॉलीमर चैप्टर का पूरा मैंने रट्टा लगाया है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो यू कैन सी दैट दिस आइसोप्रीन जिसको कि हम C14 पॉलीआइसोप्रीन भी बोलते हैं, उसको ही हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। ये देखो आइसोप्रीन सबको पता होता है नेचुरल रबर है, लेकिन उसका जो आईपैक नेम है वो किसी को नहीं पता है, दैट मीन C14 पॉलीआइसोप्रीन। तो द करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो द 106 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 is used as refrigerant for आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ये गलत है, क्योंकि CO2 इज नॉट ए फेरॉन्स। आपने अगर आपका जो एन हेलोएरिन्स चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, देन आपको वो अच्छे से याद होगा। वहां पे टेट्राक्लोरोमीथेन नाम का एक होता है जो यूज होता है ये रेफ्रिजरेंट के हिसाब से। देन द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेंट, C16 मतलब फुलेरिन। फुलेरिन में बोला है गया कि 12 6 मेंबर ऑफ रिंग होते हैं, कार्बन रिंग होते हैं, और 25 मेंबर रिंग होता है। ये उल्टा किया गया है। अगर आप लोगों ने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है, बेसिक्स जो दिया गया है जो फर्स्ट चैप्टर, वहां पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 20 नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग एंड 12 नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग। तो ये उल्टा गया, तो ये ए एंड बी तो गलत है। सी देखते हैं, ZSM5 a type of zeolite is used to convert alcohols into gasoline. Yes, it is correct. CO is colorless and odorless gas. Yes, this also correct. So the C and D statement are correct. So option 3 will be correct. ठीक है,
Next, come to the 107 number. The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition. Adiabatic condition, ठीक है, तो adiabatic condition पे डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो होगा. Q जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा और टेम्परेचर भी जीरो होगा. तो यहाँ पे सभी जीरो होंगे. तो कहाँ पे है पूरा महाशून्य, शून्य शून्य महाशून्य. ऑप्शन 4. So the option 4 will be correct. Next 109. अरे भाई मैं तो यहाँ पे आंसर देखिए छाप के ही आ गया हूँ. सो ये भी पूरा एनसीईआरटी का डायरेक्ट ही है. आप देख सकते हैं अगर हम CH3 Cl2H मतलब लाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो सबसे पहले हमको ये बेंजाल क्लोराइड निकलेगा और उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड करेंगे. तो ये पूरा एनसीईआरटी से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्लेन. नेक्स्ट कम टू 108 क्वेश्चन. Which of the following oxo acid of sulfur has OO linkage? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होंगे मुझे पता है. आइदर वो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में होंगे या फिर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में होंगे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फोरस एसिड में ये नहीं होता है. तो मैं अभी आपको ये दोनों ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले हम करते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, और जो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. एंड हियर इज द ओ सिंगल ओ बॉन्ड ओ लिंकेज. तो आंसर विल बी 2. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट रेस्पेक्टिवली आर. देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर जितना है वो तो हो गया उसका प्रोटॉन नंबर. ये तो बेसिक्स है. तो प्रोटॉन नंबर हो गया 71 और ये न्यूट्रल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया गया है. तो प्रोटॉन जितना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा. ठीक है, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 71 कहाँ पे दिया गया है पहले हम देखते हैं. देखिए 1, 3 एंड 4 में दिया है. अभी हमको निकालना है तो न्यूट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा. द एग्जामिनेटर वांट्स टू डू सम मैथमेटिक्स. सो लेट्स डू 175 माइनस 71, दैट मीन्स 4 0 हो गया और ये हो गया 104. तो 71 104 71 कहाँ पे दिया गया है, देखो ऑप्शन 4. तो इसका आंसर 4 होगा. ठीक है. हमारा जो ये वीडियो लगता है बहुत लंबा हो गया है, तो बाकी सारे क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में करेंगे. तो स्टिल देन स्टे विद अस. थैंक यू.